Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Ushi inspires aspirations. Friends, this is a 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Ushi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, today's topic is practice effective communication. The basic part of any action reaction is communication. So communication should be very clear. So practicing effective communication involves expressing your thoughts, your ideas, your feelings clearly and listening actively to others. Listening actively to others, not hearing. There is a basic difference between hearing and listening, friends. Hearing, we are not at all involved in that communication. इट इज जस्ट एज इफ यू आर यूजिंग बोथ द ईयर्स, दोनों कानों का इस्तेमाल कर रहे हो, इस कान से आ रहा है दूसरे कान से बाहर, वो ब्रेन की तरफ जा ही नहीं रहा है। सो कम्युनिकेशन समझ में आया ही नहीं क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। दिस इज हियरिंग। बट व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? You have to listen, you have to involve in that communication, you have to be actively involved in that communication, understand what others are saying, express yourself so clearly that there cannot be any ifs and buts. किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इतना क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। सो ऐसे अगर क्लैरिटी रहेगी तो मुझे लगा, मैंने ऐसा समझा, तुमने क्या समझा, ये सारे डायलॉग खत्म। यू कैन नॉट हैव दैट आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो मुझे लगा मैंने कहा। That is effective communication. And that is what you have to make him understand, the others also to understand what you want to say. They cannot interpret your communication. They cannot interpret your say. You have to be so clear in your thoughts and your expressions. So it ensures that message is accurately delivered and understood by the recipient, reducing the misunderstanding and fostering meaningful interactions. अगर सामने वाला भी समझ गया आपके तो कम्युनिकेशन आगे जो चलेगा, रिएक्शन इंटरेक्शन जो चलेंगी वो मीनिंगफुल रहेंगी। नहीं तो झगड़ा, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, तुमने ऐसे समझ कैसे लिया। ये जो आमतौर पे डायलॉग्स है, दे आर रियली टेकिंग यू टुवर्ड्स अ फाइट। डिफरेंस इन कम्युनिकेशन ऑलवेज लीड्स टू डिफरेंस इन ओपिनियंस, ऑलवेज लीड्स टू अ फाइट। मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, मेरा मतलब ये था ही नहीं। भाई अगर मतलब नहीं था तो बोला क्यों, और ऐसे क्यों बोला कि नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर स्टेटिंग। जो पहले आपने कह दिया फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था, तो माने मेरा मतलब ये था। ये है ना, आमतौर पर हमारे ये डायलॉग्स कॉमन है हमारे कम्युनिकेशंस में। सो दैट इज द डिफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन। So effective communication is vital. It is important in both personal and professional interactions, because the professional strength is always based on the communicative strengths. So it helps you to increase your bonds of the relationship. That is, the bonding would be very strong. It enhances collaboration and resolves conflicts. Defective communication, it creates conflicts. मैंने कहा ना कि नहीं, मैं ऐसा कहना ही नहीं चाहता था, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, तुमने ऐसा समझ लिया, ओह उसने कुछ गलत ही समझा, तो आपने कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं किया। यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। ही कैन नॉट इंटरप्रेट व्हाट यू आर सेइंग। So this will help you to build a strong relationships. It will help you to take the team along. So good communication skills also boost confidence and help convey complex ideas in simple but reliable manner. कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव रहा तो आप अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशंस सही तरीके से दे सकोगे।
आपकी टीम, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके मेंबर्स सब अंडरस्टैंडिंग मोड में रहेंगे, सब लिसनिंग मोड में रहेंगे, इफ योर कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर. अदरवाइज दे विल गो ऑन हियरिंग मोड. हियरिंग मोड मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो दोनों कानों का इस्तेमाल करते हैं, रहते तो आपके साथ है, बातें आपके साथ हो रही है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है. इस कान से सुन रहे, दूसरे कान से जा रहा है, ब्रेन की तरफ कुछ जा ही नहीं रहा है. सो दैट इज नॉट लिसनिंग मोड, इट इज अ हियरिंग मोड. अगर ऐसा होता है, फिर हमेशा ये संभाषण, ये का इंटरैक्शन, इट ऑलवेज एंड्स इन अ फाइट. मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला था, मुझे पता है. ये सारे डायलॉग तभी आते हैं जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं करते हैं और हम लिसनिंग की बजाय हियरिंग मोड में रहते हैं. सो व्हेनेवर इन कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, be actively involved. Listen to what others are saying. Listen, not hear. Listen. And then act on it. So, practicing effective communication is essential for success in every area of life. Because once you start communicating very clearly, now it is very clearly, the message is very clear to others also. What you want to send, what is expected, or what you are expecting from your say. Correct? Correct. So it fosters mutual understanding, builds trust, and enhances productivity, making it a cornerstone of positive interactions and growth. तो कम्युनिकेशन ही क्लियर रहेगा तो किंतु परंतु इफ बट्स के लिए कोई जगह नहीं है. मुझे ऐसा लगा नहीं, ये फ्रेज आएगी ही नहीं, ये डायलॉग आएगा ही नहीं, ये है, ऐसा ही होना चाहिए. तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करेगा. इट विल टेक यू फर्दर टुवर्ड्स योर ग्रोथ. सो बी एन एक्टिव लिसनर, बी क्लियर एंड कंसाइज. कंसाइज मतलब बहुत बड़ा बड़ा बोलते रहोगे तो आदमी का इंटरेस्ट चला जाएगा. यू ऑल्सो हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व इन योर कम्युनिकेशन. सो बी कंसाइज, शॉर्ट में कहो जो कहना है वो. दैट विल हेल्प यू. यूज नॉन वर्बल क्लूज ऑल्सो. अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्शन से कई बातें आप कह सकते हो, अपने एक्सप्रेशन से कह सकते हो. सो यू हैव टू यूज दोज फॉर योर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और क्लियर कम्युनिकेशन. प्रोवाइड अ फीडबैक. ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर एंड इनवाइट ओपन डायलॉग फॉर बेटर कम्युनिकेशन. अगर आप समझ नहीं पाए तो उसे समझाओ कि नहीं आपको यू आर नॉट इट अंडरस्टूड. यस, you have to give the feedback. Then only communication will improve. So also you should take the feedback. So also it will help you in developing your communication skills. And in the way, it will help you to grow further, to develop confidence, to develop or project your a very effective communication way. So practice effective communication, friends. It is the necessity of life in every walk of life. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers because Joshi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.